Assalamu alaikum students. Hope you all are well at home. I am Bushra Imtiaz for BBA 4 for the subject of the ideology of Pakistan. Today we are having lecture 8 and the topic of the lecture is War of 1857. It is also called War of Independence in 1857. This was a war which is also called the Indian Rebellion of 1857, and this was a major but ultimately unsuccessful uprising in India in 1857 against the rule of the British East India Company, which functions as a sovereign power on behalf of the British Crown. This war was actually began on 10th of May 1857. Uh, in Meerut by Indian troops in the service of the British East India Company. It spread to the Delhi, Agra, Kanpur, and Lucknow. This war of independence is also an important landmark in the history of the subcontinent. This, wars, this war was fought in 1857, as I have already told you, by the Indian against the British in order to get rid of their domination. गर्ल्स हेयर इंडियन मीन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना कि वी टॉक अबाउट द जहाँ भी ये वर्ड आएगा ना द इंडियंस दैट इट मीन्स हिंदू मुस्लिम ऑल द नेशंस विच वर लिविंग एट दैट टाइम इन द सब कॉन्टिनेंट दे ऑल वर इन्वॉल्व इन दिस बट स्पेशली मेन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर इन्वॉल्व इन दिस वॉर against the British in order to get rid of their domination, because British Raj, this East India Company was there, and they were the functioning as the they started trade there. तो उससे क्या है, उससे जो है इनकी डोमिनेशन से इनको ख़त्म करने के लिए जो है ये वॉर हुई, एंड दिस आल्सो गिवन द नेम एज इंडियन रिबेलियन, इंडियन म्यूटनी, एज वेल एज द इंडियन रिवोल्ट. इसको डिफरेंट नेम के साथ जो है वो इसको लिया जाता है. अच्छा, द मेन कॉज ऑफ द वॉर दे वर पॉलिटिकल. वी विल डिस्कस ऑल दीज इन लेटर. आगे हम अभी इसको डिस्कस जो है वो करेंगे. सोशल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री एंड रिलीजियस. And this was an extreme effort made by the Indians, but they failed due to the certain reasons, and these reasons included the mutual jealousy, क्योंकि बहुत सारे सब इकट्ठी कौम में जो है वो रह रही थी, और इस वजह से भी, और क्या है, disunity, they were not united, and lack of central leadership etc, because they were having no a prominent leader who could lead them टूवर्ड्स द राइट पाथ. किसी सही उसमें जो है वो उसको लेकर जाते, वो उसमें जो है वो नहीं, उसमें जो है वो था. here are the causes of the war of independence. जो अभी पीछे हम कह रहे थे, different political, social, religious, economic causes were there, जो कि which led to the war of the Indians against the British Raj. The first one is the political causes. As the British extended their control and they introduced many ways of grabbing the land, like the use of the doctrine of lapse. This doctrine of lapse means, बच्चे ये जो है वो ये क्या चीज़ है? This was actually a doctrine of lapse was the pro-imperialist approach. This was an approach, a theory to expand the realm of the British Kingdom in India, and it was introduced by the Dalhousie's, Lord Dalhousie, who was the Governor General at that time, and was very unpopular. अब उसमें ये जो है वो क्या चीज़ इसमें जो है वो, it was used by him to annex the independent Indian states. जो है उनको जो है वो it was basically an idea to annex those states which have no hair, means state have no hair, they get lapse
lapsed the right of the ruling and it will not reverted by adoption. मतलब वो रियासतें जो है, असल में इनका मकसद तो यही था कि रियासतें जो हैं वो ये जो प्रिंसली स्टेट थी और द सॉवरन स्टेट्स थी उनको जो है वो क्या है ख़त्म जो है वो कर दिया जाए. इस वजह से दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस एंड द मिस ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्परर वाज आल्सो अनदर कॉज. मुगल एम्पायर थी उस वक्त, उनकी जो है वो चल रहा था सब कुछ, उस रूलिंग को ख़त्म करने के लिए उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी डोमिनेशन स्ट्रॉन्ग कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ब्रिटिश राज जो है उसका कंट्रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा था. और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुगल्स को जो है वो उनको बहुत मिसट्रीट जो है वो किया जाता है. एंड व्हेन द लॉर्ड डलहौजीज मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने फिर अपना कैपिटल भी जो है वो चेंज जो है कर लिया एंड इट एंगर्ड मैनी पीपल. Another political cause was the English replaced by the Persian as an official language, because in subcontinent Persian was the official language in the time period of Mughal Empire. लेकिन जब ये ब्रिटिश कंट्रोल जब ये होना जो है वो शुरू हुआ तो क्या हुआ कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया जाने लगा. Some religious and social causes were also there for in the War of Independence, as the rule of the British grew so did it culture. बहुत जो है वो इनका कंट्रोल जो है वो बढ़ता जो है वो चला जा रहा था एंड ब्रिटिश थॉट दैट दे वर सुपीरियर कल्चर एंड दे डिसरिस्पेक्टेड द इंडियन कल्चर. एक तो वो अपने आप को बहुत समझ रहे थे कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत ही सिविलाइज्ड है और बहुत ही हम वी आर द सुपीरियर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे डिसरिस्पेक्टेड द इंडियन कल्चर एंड दे ऑल्सो डिड नॉट गेट mixed with the Indians as well, as they thought that the Indians are uneducated and uncivilized people. उनको वो जो है वो बैकवर्डनेस उनको बहुत समझते थे कि बहुत बैकवर्ड से लोग हैं और इस तरह से दे आर अनएजुकेटेड एंड दे आर नॉट सिविलाइज्ड एंड वी आर द सुपीरियर एंड वी आर हैविंग द डिफरेंट कल्चर फ्रॉम द इंडियंस. तो वो उनके साथ मिक्स नहीं जो है वो हो रहे थे, सोशली जो है वो उनके साथ मिक्स वैसे जो है वो नहीं हो रहे थे. एंड दिस एरोगेंट एटीट्यूड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वेज ऑफ लाइफ विद railways, roads, telegraph were not accepted by many Indians. बहुत सारे इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर, बल्कि if we could say कि especially the Muslims, they were not ready to accept these modern टेक्निक्स और द मॉडर्न एजुकेशन बाय द इंग्लिश के वो इसको जो है वो एक्सेप्ट करें. और वो समझते थे कि अगर हमारे ये मज़हब के ख़िलाफ़ है और हम जो है वो अंग्रेज़ी को सीखना या अंग्रेज़ी जो है वो बोलना और इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ना जो है वो उसको गलत जो है वो समझ रहे थे और वो उनसे एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं था. एंड दीज इंडियंस थॉट दैट देयर रिलीजन वाज ऑन थ्रेट by the foreigners and was sent Christians monks to spread their religion. और ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो है वो क्रिश्चियन मॉन्क्स जो है उन्होंने जो है वो लीडर्स जो है रिलीजियस लीडर्स जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो भेजे ताकि जो है वो क्या चीज़ हो कि वो उनका मज़हब जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फैल सके. एंड दीज मॉन्क्स इंसल्टेड द रिलीजन ऑफ द इंडियंस एंड दिस एंगर्ड मैनी इंडियन गर्ल्स. मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इंडियंस में हिंदू मुस्लिम सिक्स आर इन्वॉल्व, डिफरेंट स्मॉल नेशन, लेकिन प्रोमिनेंट दो ही थी, हिंदू और मुस्लिम जो है वो दो नेशन जो है वो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो थी. सम इकोनॉमिक causes were also in the are also there in the war of independence. क्या उसमें जो ब्रिटिश मर्चेंट्स ट्रेडेड विद द इंडिया विच वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम. अब ये जो इन्होंने इतनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है वो इनको जो है वो वहाँ यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जब उन्होंने ट्रेड की तो उससे इनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा जो है वो उनको बहुत ज़्यादा इन ताजरों को इनको इस कंपनी को जो है वो हुआ. एंड द ब्रिटिश इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन इंडियन. अब जब फ़ायदा हुआ एज देयर कंट्रोल ग्रू तो उससे क्या जो है वो हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनका कंट्रोल बढ़ने लगा. तो क्या चीज़ उन्होंने क्या किया कि दे इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन द इंडियन. उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है एंड द टैक्स कलेक्टर्स were corrupt and kept some money for themselves. For the resentment grew when the British filled Indian market with the cheap mass
प्रोड्यूस्ड गुड्स, और ब्रिटिशर्स ने जो है वो क्या किया कि अब मार्केट में अपनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो करनी जो है वो शुरू कर दी हैं, और इससे जो है वो क्या हुआ, मैनी फैमिलीज वर अनएबल टू सेल देयर गुड्स, दस दिस मेड मोस्ट ऑफ द इंडियन पुअर। और इसी से जो है वो क्या है, क्योंकि वो बहुत ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही लो प्राइस में जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सेल की ताकि जो है वो इंडियंस जो है वो अपनी गुड्स को सेल ना कर सकें। तो इससे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज they became poor, and the British also made the salary of their army very low, बहुत कम जो है वो उन्होंने जो है वो इसको जो है वो कर दिया। some military causes, यहाँ पर क्या उसमें there were many Indian soldiers in the, अच्छा बच्चे ये जो मिलिट्री कॉजेज है ना, इसमें एक बात है कि यही एक बहुत बड़ा आगे जो है एक जो है वो इंसिडेंट हुआ बाय एन इंडियन सिपाही के, उससे जो है वो ये जो है वो जंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो, या ये सॉरी इसको जंग का वर्ड नहीं, अगर हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि ये जो है बगावत का जो है चीज़ें, वो जो है फीलिंग जो है वो रिबेलियन फीलिंग जो है वो बहुत बढ़ना जो है वो शुरू हो गई। वो क्या था, देयर वर मैनी इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी बट नॉट इवन अ सिंगल ऑफ द इंडियन वॉज मेड एन ऑफिसर। वो उनको बहुत ही लो रैंक में जो है आर्मी में उनको जो है वो क्या कहते हैं रिक्रूट करते थे, और उनको ना प्रमोशन दी जाती थी और ना ही उनको एज अ ऑफिसर जो है वो उनको बनाया जा रहा था। एंड दिस, और इससे जो है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो इंडियंस में जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो आ रही थी। एंड द ब्रिटिश यूज देयर आर्मी टू फाइट अदर कंट्रीज, एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस, और ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे बिकॉज दे क्योंकि क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दैट वाई बिकॉज दे डिड नॉट वांटेड टू लीव देयर मदरलैंड। वो चाहते ही नहीं थे कि वो अपना जो है वो मदरलैंड को जो है वो छोड़ के जो है वो जाएं। एंड देयर वर आल्सो रूमर दैट द इंडियंस वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी बिफोर दे कुड बी मेड द ऑफिसर्स। अच्छा, उन्होंने फिर कंडीशन भी ये रख दी कि क्या चीज़ है कि अगर इंडियंस जो हैं वेदर दो कुड बी द मुस्लिम और द हिंदूज, कोई भी जो है वो उनको जो है वो तब तक जो है वो आर्मी में ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा या प्रमोशन जो है उनको नहीं दी जाएगी अनटिल दे कुड कन्वर्ट देयर रिलीजन इनटू क्रिश्चियनिटी। अगर वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो अपना मज़हब जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर उनको जो है वो आर्मी में जो है वो प्रमोट जो है वो किया जाएगा, अदर देन वो लो रैंक पर ही जो है वो रहेंगे। सो हियर आर सम इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ 1857, कुछ जो ऐसे वाक़यात विच लेड टू द रिबेलियन, जिसने कि जो है बिल्कुल ही जो है वो ऐसे कुछ वाक़यात हो गए जिसकी वजह से जो है वो ये इंडिपेंडेंस वॉर जो है वो हुई। और उसमें कुछ जो वाक़यात जो हैं वो क्या चीज़ है, इन स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था और इसी वजह से आगे जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो होना शुरू हुई और अगेंस्ट हो गए वो ब्रिटिश कंट्रोल के। In January 1857, the British announced that they would introduce a new rifle with a paper cartridge covered with grease, and that to keep the powder dry, and before the cartridge would be loaded, the end had to be bitten। एक पेपर कार्ट्रिज जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस जो है और वो क्या है वो ग्रीस से जो है उसको फिल जो है वो किया कवर किया हुआ था। हाउएवर लेकिन उसमें जो रूमर थी, जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो इसमें क्या थी कि रूमर स्प्रेड दैट दिस द ग्रीस वॉज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग्स फैट, और यही वो चीज़ थी जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया और इस वजह से जो है रिबेलियन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। दिस बॉयज वर ऑल्सो एंग्री दैट दे रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू राइफल, और इसी वजह से कि उन्होंने इसी के ये जो है वो काउ और पिग जो है फैट से जो है वो बने हुई थी, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करने से जो है वो जब मना किया और उसको रिफ्यूज़ किया इसको, तो दिस गेट एंगर द ब्रिटिशर्स के वो उसकी आर्मी में ऑफिसर जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उनमें जो है गुस्सा था। एंड इन मार्च अ सिपाही नेम्ड मंगल पांडे defied his British officers and was executed। क्या है उसने जो है वो अपने इसी उसमें जो है वो अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर आर्मी ऑफिसर जो
को जो है वो उसको जो है मार दिया, और इस वजह से उसको भी जो है वो ही वॉज एग्जीक्यूटेड। और ये वो बहुत बड़ी दोनों वजह जो है वो बन गई, और इससे जो है वो वॉर जो है वो स्प्रेड हो गई। Here are some reasons for the failure of the war of independence. अब ये बच्चे, इसमें वॉर तो ये शुरू हुई, और इस वॉर में जो है वो बहुत सारे डिफरेंट रीजंस भी थे, पॉलिटिकल रीज़न, द सोशल रीज़न, रिलीजियस, इकोनॉमिक रीज़न एंड द मिलिट्री रीज़न, जो अभी हमने जो है वो डिस्कस किया। और कुछ इवेंट्स जो है वो आए, और बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसमें जो है वो, जिसकी वजह से जो है वो ये वॉर जो है वो शुरू हुई। लेकिन दिस वॉज फेल्ड, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया भी है कि ये वॉर शुरू तो हुई, लेकिन क्या चीज़ है, दिस वॉज द अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल। रिजल्ट इसका जो है वो कोई जो नहीं हुआ, बल्कि क्या चीज़ जो है वो हुआ कि इससे और ज़्यादा जो है वो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिशर्स जो है या उनका रूल जो है इन इंडिया वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो है वो फाइनली के इट वाज द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द इमर्जेंस ऑफ द ब्रिटिश राज इन द सब कॉन्टिनेंट। और ब्रिटिश जो है वो उन्होंने पूरा कंट्रोल अपना जो है वो बड़े सगीर में जो है वो कर लिया। Here are now come to the reasons for the failure of war of independence. First one is the lack of unity. बच्चे जो चीज़ यहाँ पर है lack of unity means कि ये पूरे जो इंडियंस थे यहाँ पर, इसमें डिफरेंट नेशंस वर लिविंग देयर, और ये सब इसमें जो है वो स्पेशली हिंदू मुस्लिम जो है वो इनमें इन्वॉल्व थे, लेकिन there was no unity between them, there was no trust between them, or there was not a leader within them कि who could lead them. कुछ भी ऐसा जो है वो चीज़ें जो है वो नहीं थी। वो मैंने पीछे ही बताया कि lack of leadership भी जो है उसमें थी। Although the whole Indian nation they faced the resentment against the British, लेकिन बट द एम वर डिफरेंट, फ़र्क था। अब सब अपने अपने उसमें जो है वो एम्स के खातिर जो है वो इसमें जो है वो लड़ रहे थे। द मुस्लिम वांटेड टू रीगेन द कंट्रोल अगेन एंड सेट अप द मुगल एम्पायर। ठीक है, वो चाहते थे, मुसलमानों का अलग से एम था, वो कह रहे थे कि हम अपना जो है वो मुगल एम्पायर जो है उसको दोबारा से जो है वो हमें ये कंट्रोल मिल जाए और दोबारा से उसका सेटअप जो है वो बना लिया जाए। देयर वाज नो जनरल प्लान और द लीडर, कोई भी नहीं था, कोई ऐसा प्लान नहीं था, उनका कोई लीडर नहीं था, बस वो एक अनसीन किस्म की एक चीज़ जो है वो चल रही थी, बिना देखे ही वो जो है वो इस जंग में जो है वो शामिल हो गए थे सिर्फ और सिर्फ। हाँ, एक ज़रूर बात है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ देम, जो उनका एक ही मकसद होता है वो कि यहाँ से ब्रिटिशर जो है वो यहाँ से चले जाए। बाकी उसके बाद व्हाट वुड बी द प्लान इन द नेक्स्ट, इसमें उनको कुछ भी जो है वो नहीं पता था। द प्रिंसेस डिड नॉट वांट द इंपीरियल पावर, वंस अगेन नहीं चाहते थे ये जो जितने भी जो है बादशाह थे, एंड देयर वाज नो सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड द इंडियन वाज टू डाइड फॉर सच अ फीलिंग। कोई नहीं थी उनके अंदर कोई इतनी हुब्बुल उस तरह से जो है वो नहीं थी, वो बिकॉज दे वर डिवाइडेड, देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी एंड द ओनली यूनाइटिंग फोर्स वाज इस्लाम। अब मुसलमानों की जहाँ पर हम बात करेंगे, दैट वाज कि मुसलमानों को जिस चीज़ ने जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो किया, सॉरी यूनाइट जो है वो किया हुआ था, दैट वाज इस्लाम। बट द अदर ग्रुप्स अपोज देम which were Hindus and Sikhs, as they did not want the rule of Muslims once again in India। और वो नहीं चाहते थे। मुसलमान तो जो है इस वॉर में थे और दोबारा से अपने जो है एम्पायर सेट करना चाह रहे थे, और इस्लामिक लाइफस्टाइल जो उनका पहले था उसी को जो है वो दोबारा से जो है वो रीगेन जो है वो करना चाह रहे थे। लेकिन ये हिंदू सिख्स जो है वो ये दोबारा से मुसलमानों का रूल नहीं चाहते थे, एंड दीज वर द रीजंस एज द ब्रिटिश कंसीडर दिस एज अ मुस्लिम रिवॉर्ड। इसीलिए मुसलमानों ज़्यादा इल्ज़ाम बाद में, क्योंकि बच्चे इस वॉर के बाद जो है वो क्या था कि हिंदुओं ने अपनी क्लेवरनेस की वजह से सारा का सारा ब्लेम जो है वो मुसलमानों को जो है वो दे दिया, और वो जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और उनके साथ जो है वो उन्होंने जो काम करना जो है वो शुरू एज अ फ्रेंडली रिलेशन, दे डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से और मुसलमान जो है वो पीछे रहे, और इसी वजह से बाद में ब्रिटिश ने जो है इसको कंसीडर किया एज अ मुस्लिम रिवॉर्ड। और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं, इसी वजह से ऐसा हुआ कि 1857 की वॉर के बाद मुसलमानों को ज़्यादा इसमें जो है वो लॉस हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ, और उनको बहुत जिसको कहते हैं ना
संगीन नताइज जो है वो उनको जो है वो भुगतना जो है वो पड़े, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थे। बिकॉज क्या उसमें जो है वो देयर लैंड्स वर कन्फिस्केटेड, देयर बिजनेस वर क्लोज, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर ऑफिशियल जॉब्स एक्सेट्रा, स्पेशली इन द मिलिट्री। उन्हें ज़मीनें उनसे छीन ली गई। तो ऐसा क्या था कि सारी जो है सारा का सारा जो है इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुसलमानों पर जो है वो आ गई। उनकी मस्जिदें बंद कर दी गई थी, उनकी मस्जिदों को जो है वो ताले जो है वो लगा दिए थे। देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे वर क्लोज्ड एज वेल, उनके वो भी जो है वो बंद हो गई थी। और मुसलमान जो है तालीम हासिल करने से भी जो है वो, इसी वजह से जो है वो क्या चीज़ है, इसको जो है वो ब्रिटिशर्स ने इसको जो है मुस्लिम रिवॉल्ट का नाम जो है वो दिया। नाउ हियर आर सम इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। क्या इसके जो है वो असरात है। द फेलियर ऑफ द वॉर कन्फर्म दैट द ब्रिटिश मास्टर ऑफ इंडिया, ये तो कन्फर्म हो गया कि वॉर ख़त्म हुई और ब्रिटिशर जो है वो उनको कंट्रोल मिल गया, एंड दे वर कंसिडर्ड एज द मास्टर्स ऑफ इंडिया। द वॉर डिड नॉट लूज इन कंट्रोल। उनसे वॉर्स करने से उनका कंट्रोल नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि रादर टाइटनड इट, बढ़ गया उनका कंट्रोल, और ज़्यादा उन्होंने इसको कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी हाँ वॉज अबॉलिश एंड द ब्रिटिश टुक फुल कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर्स। पहले तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जिसके थ्रू जो है वो ट्रेड हो रही थी, जिसके थ्रू जो है वो ये सब कुछ जो है वो चल रहा था। नाउ द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड द ब्रिटिश दे टुक फुल कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर्स। उनका पूरा तरह कंट्रोल जो है। इन 1877 द क्वीन विक्टोरिया was given the title as a Empress of the India and the Mughal royal family decayed away, ख़त्म हो गई उनकी फाइनली जो है वो चीज़ें, उनका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। There were very cruel act in the war, as in the town of the Kanpur the Indians had murdered several British women and children टू अवेंज देयर डेथ। उन्होंने बदला भी लिया, और इसके बदले में फिर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, उनको ब्रिटिशर्स का जो है वो उनको जो है वो रिएक्शन जो है वो बर्दाश्त जो है वो करना पड़ा। एट द ब्रिटिश किल्ड एनीवन हु वाज सिंपैथेटिक टू द इंडियंस। सबको ही जो है वो मार रहे थे। और मुसलमानों को तो कहते हैं कि उस वक्त इस वॉर के बाद मुसलमानों को कहा यह जाता है कि मुसलमान होना एक जुर्म जो है वो बन चुका हुआ था। मुसलमानों को ढूंढ कर जो है वो उनको कत्ल जो है वो किया गया, और इस वजह से जो है वो सारा जो है ये ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो कत्ल जो है वो कर दिया। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वाइसराय हु वॉज नोन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट इन द country. Viceroy was introduced and he was responsible for the affairs of India, और वो ही जो है इंडियन अफेयर्स को जो है वो ब्रिटिश क्राउन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और उनको जो है वो सारी जो है वो उसके साथ जो है वो कंट्रोल में जो है वो रखेगा। He had over 1,000 civil servants to help him administer the country, and these ranged from highly paid judges to lowly paid junior administrator। और उसने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ है कि अपने जो है वो सिविल सर्वेंट जो है वो रखे, जो उसको हेल्प कर रहे थे, और जो है उसको जो है वो इंडियन अफेयर्स में जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उसको हेल्प आउट जो है उन्होंने जो है वो किया। अच्छा, here is after the war the British stopped funding Muslim schools। मैंने अभी पीछे आपको बताया ना, मुसलमानों को ज़्यादा जो है वो इस वॉर के बाद जो है वो ज़्यादा संगीन नताइज जो है वो उनका सामना जो है वो करना पड़ा। और क्या है, क्योंकि मुसलमानों को ब्लेम किया गया कि ज़्यादा उनके हिंदू तो मिल गए उसके साथ ब्रिटिशर्स के साथ, तो ज़्यादा मुसलमान ही जो है वो उनको, और क्योंकि और उसका रीज़न भी बहुत बड़ा उनके पास था, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम्स वर इन द रूल। वो क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में वही सबसे स्ट्रांग जो है वो रूल करते आ रहे थे, इस वजह से उनको जो है वो ज़्यादा नताइज जो है वो उनके सामने जो है वो है। एंड द ब्रिटिश स्टॉप द फंडिंग ऑफ द मुस्लिम स्कूल्स, एंड बिकॉज द मुस्लिम्स स्टिल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल, सो दे डिड नॉट गो इनटू द ब्रिटिश स्कूल एंड बिकेम अनएजुकेटेड। ये जो अभी बात की है कि मुसलमान जो है वो दे
जिसको कह सकते हैं कि वो दे डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, और इसी वजह से जो है वो क्या चीज़ है कि उन्होंने जो है वो दे वर नॉट रेडी टू गेट द इंग्लिश एजुकेशन और द मॉडर्न एजुकेशन, और उनको ये लग रहा था क्योंकि उन्होंने उनके जो है वो उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और अगर वो अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करेंगे तो इससे जो है वो उनके लिए वो जो है वो एक उसको वो जो है वो अच्छा नहीं वो जो है वो समझ रहे थे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड दिस वॉज नॉट द केस with the Sikhs and the Hindus, and they became the friendly with the British and very quickly learn to speak English। बड़ी उन्होंने हिंदुओं ने स्पेशली हिंदुओं ने जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो अपने फ्रेंडली रिलेशन जो है वो इनके साथ जो है बना लिए, और जो है वो इंग्लिश भी सीख ली, और बहुत सारी जॉब्स भी जो है वो इनको जो है वो मिल गई, और बहुत तालीम में भी वो मुसलमानों से बहुत आगे निकल गए, मुसलमान बहुत पीछे रह गए। आफ्टर 1857 the British did not trust the Indians, and thus they were not taken in the army, and the British did not allow the Indians to have their own weapons। आर्मी में भी नहीं ले रहे थे और वेपन्स भी उनको रखने जो है वो अलाउ नहीं थे, एंड दस मेकिंग द फ्यू फर्दर रिबेलियंस लेस इफेक्टिव, ताकि उनको ये खौफ था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कोई और ना कोई बगावत ना आ जाए। एंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज नाउ अनचैलेंज्ड। This was completely India subcontinent was completely controlled. India was completely controlled by the British। पूरी तरह उन्होंने जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल कर लिया। ये पूरे ये सारे इसमें जो है वो इसके डिफरेंट रीजन और इवेंट्स और इनके कॉजेज जो है वो बने। Here is the conclusion now। अच्छा बच्चे, ये वॉर जो है वो हुई, मुसलमानों ने बहुत मुश्किलात जो है वो इसमें देखी। देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर सिविल गवर्नमेंटल जॉब्स, और क्या चीज़ है देयर लैंड्स वर कन्फिस्केटेड, और क्या चीज़ है उनको मुसलमान होना जो है उस वक्त जो है वो एक जुर्म जो है वो बन गया था, उनके ऊपर बहुत ही जुल्म सितम के जो है वो पहाड़ जो है वो हो गए थे। तो अब उसमें ये क्या चीज़ है इसमें देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन हिस्टोरियंस have pointed out that it was a revolt of Indian soldiers who were offered at the to use the grease cartridge। जो भी हुई ना, मैंने मिलिट्री कॉजेस में आपको बताया था ना कि बहुत बड़ी एक वजह बनी इस बगावत की कि वो जो है वो क्योंकि दैट वाज फिल्ड बाय द काउ एंड पिग्स फैट, तो उस वजह से दे रिफ्यूज़, और मुसलमान तो स्पेशली जो है वो ये हराम थी उनके लिए चीज़, तो इस वजह से उन्होंने इनकार किया। एंड इन देयर ओपिनियन the discontented sepoy were incited by the landlords and the deposed native princes, and the people of the India were not directly involved in this rebellion। उसमें जो है वो उन्होंने कर दिया इसमें। They further asserted that it was not a national war of independence। ये कोई इस तरह की जंग नहीं थी, as much as the revolt was confined to a particular region and not to the whole of the India। शुरू तो वहीं से हुई थी ना, मैंने आपको अभी बताया ना, दिल्ली से और कभी मीरठ से जो है वो शुरू हुई और फिर तो फैली ज़रूर, लेकिन पूरे इंडिया में जो है वो नहीं फैली थी। लार्ज एरियाज लाइक पंजाब, सिंध एंड राजपुतना क्या उसमें जो है रिमेन्ड अनअफेक्टेड। ये जो है वो इन तक जो है वो नहीं पहुंची थी। It was admittedly a great and a courageous effort by the patriotic Indians to get rid of the foreign domination। बड़ी उन्होंने एफर्ट जो है वो की, और ये बड़ा उनका एक करेज जो है उसको ये समझा जाता है। उन्होंने कोशिश जो है वो की कि वो जो है वो क्या चीज़ है फॉरेन डोमिनेशन को जो है वो ख़त्म कर लें, लेकिन क्या चीज़ है ऐसा नहीं हुआ। एंड इट वॉज अ ग्लोरियस landmark in our history। In as much as Hindu and Muslim fought shoulder to shoulder to win back their lost independence, कोशिश पूरी की है, and one cannot but admire the patriotic spirit of the boatmen of the Lucknow who refused to carry द ब्रिटिश सोल्जर अक्रॉस द रिवर। उसने तो रिफ्यूज़ कर दिया ना, इससे ही ये जो है वो पता चलता है। हाँ, ये मानी जाती है बात कि उस वक्त जो है वो बहुत ही जो है वो उस वक्त इस चीज़ का जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश था कि वो दे कुड गेट
rid of the foreign domination, और वो चाहते थे कि हमारी want to win the back their lost independence, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक जो है ब्रिटिश सोल्जर को उसने जो है वो दरिया के उस पार ले जाने से जो है उसने रिफ्यूज़ भी जो है वो कर दिया। एंड द बॉयज़ एंड द पीपल फॉट गैलेंटली अप टू द वेरी एंड, बहुत इसके जो है वो उसमें। एंड दो द रिवॉल्ट वॉज अनसक्सेसफुल, हाँ ये अनसक्सेसफुल ज़रूर हुआ, ये कामयाब नहीं हुई, बट द स्पिरिट ऑफ द पीपल रिमेन्ड अनशेकन, उनकी नहीं ख़त्म जो है वो। एंड these revolt left an impression on the minds of the Indian people and thus paved the way for the rise of a strong national movement। और यही वो चीज़ दो के उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है वो क्या चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता विद द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्या चीज़ है कि मुसलमानों में या मुसलमानों में जो अवेयरनेस जो है वो आना जो है वो शुरू हो गई। और फिर क्या चीज़ है, द राइज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल मूवमेंट, एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट जो है वो हो गई। एंड डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स वर इन्वॉल्व इन दिस struggle. This is over for today, girls. Hope you understand the lecture. I have given you the assignment as well. आप उसको जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो if there is any query, any question, then you can ask me in the Google Classroom. Stay safe and thank you. Allah Hafiz.